Please sit down. मोनिका, एकेडमिकली आप बड़े साउंड रखते हैं, फिर भी मैं पूछूंगा हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में? I am comfortable in both languages. You are comfortable in English also? Yes. Okay. What are the qualities of a good teacher? Sir, first of all, the teacher should have patience. His content knowledge must be up to date, and he should be comfortable with students, not like very strict. He could create a democratic environment so that child can discuss their problem. They can take him as a teacher. That should be the quality of a teacher. Also, he should be an ideal for the students because many things the student learn from the observation only. There is an indirect teaching also, which is reflected through the teacher's personality. So teacher's personality must also be good above other the content also. What the courses or the factor that you are attracted toward teaching profession? Sir, personally, I am attracted to the critical thinking perspective of a teacher. He must argue with a logic, not by saying I am a teacher, so you should follow me. That should not be the way he answers. He should convince the students by his knowledge, by his logic, and by the argument. Also, the personality of a teacher also reflects me. My first question is, this profession, you have been attracted towards this profession. There are other professions also. So why this profession is given weightage for other professions? Sir, that was a long process. It started due to the need, but then I realized I enjoy teaching. I don't feel like I am tired after I have come from the school. Started in the starting, I began teaching for the just my financial conditions, but then I started enjoying teaching, and I found teaching is a good like passion for me, and I want to pursue teaching because I enjoy it. Also, I think we can change a student's life. If I teach in the primary schools, I can make a student's base good so that he can create his life on this. What are teaching skills? So I am good at teaching. I can explain things very well. I can Teaching give different skills. examples. Mention the name of teaching skills. Sir, sorry, I don't get your answer. I don't get your question. My question is, what are the teaching skills? पढ़ाने की कौशलता कौन कौन सी हैं? How can you make your teaching more effective in the class? By using teaching The material, tools used. I can use different teaching material. I can relate the teaching to their real life situations. Also, I can give them the example of their neighborhood. Also, I can involve them in hand activities and make them comfortable, like project method, or I can use technology nowadays to teach them like 3D models or something, or I can teach them with the different examples which relate to them. Like if I am teaching fraction, I can show them the example that do a partition of your roti, what you have bring in your tiffin, so, like that example which they connect in real life. Teaching skills. Teaching skills are like this, that questioning is a skill. Yes. Stimulation, variation is a skill. Yes. Introduction is also a skill. Yeah. Everyone Yes. cannot give an introduction. Yes. I will Even ask cut- them. even I will ask even them cut questions. assessment is also a skill. Everyone cannot assess. Some are assessing only giving marks, but some Yes. are assessing the critical thinking of the child. Yes. Okay. There is a learning theory of Pavlov. What is that? Sir, Pavlov is the conditional learning of theory. He basically tells that we can condition a person to a situation. Like he conditioned the dog that he can even salivation without the food. He connected the food with the bell, and the same response he get from the dog without the food, even with the bell. So we can create habits in student like that. Like we always put bag in the same place after we go home because it has become indirectly our habit.
This is how we explain. What is the natural stimuli? Sir, natural stimulus is like the dog gives salivation after smelling the food. Like we have respond, like if I touch a hot object, I will respond. This is a natural stimulus. So he replaced natural stimuli with Conditioned stimulus, like that. what is that known as in psychology? Sir- Artificial. Conditioned stimulus. Okay. What are the laws of learning? So Thorndike gives mainly laws of learning, three main laws of learning and five primary. Okay, explain only law of readiness. Sir, law of readiness means the person should be ready to get learning. Like if I go to in the class and student is not ready to learn, then I cannot teach them. Like we give a example कि अगर आप घोड़े को तालाब तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं चाहता आप उसको पानी नहीं पिला सकते. तो जब तक स्टूडेंट टीचिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है. Like I was preparing for the KVS exam. I am not interested in UPSC, so I will not read that syllabus. I will only read about the KVS syllabus because I am ready for learning this. This What is is law the of readiness. what is the full form of ECCE? Early child care of education. Full form of Early child care education. what is continuous professional development? Sir, continuous professional development is for teacher training. This is added in I think 9 NEP 2022 कि हम टीचर्स को भी कंटिन्यू, जैसे आजकल चीज़ें चेंज होती ही रहती हैं, तो टीचर्स को भी एक नॉलेज में अप टू डेट होना चाहिए. नॉट इवन द स्टूडेंट, टीचर शुड ऑल्सो अपडेट हिमसेल्फ. तो ये एक टीचर्स के लिए प्रोफेशनल वो है कि टीचर्स की असेसमेंट होगी लाइक विद द दीक्षा ऐप और लाइक दिस अदर टूल्स. How can a teacher को भी एक knowledge में update होना चाहिए? What is that knowledge called? I don't get the exact word for it. Pedagogy. Have you heard about Yes, pedagogy? sir. Pedagogy is the way of teaching, the science of teaching. So that In knowledge is pedagogy. Pedagogy, yes, sir. Pedagogy. You are science student. There is one word STEM. What is the full form of this? Sorry, sir, I don't know about. Monica, you have applied for PRT only, but you have very good education status. And Sir, I particularly have applied in TGT also. TG also. Yes. Your mathematics is also very good, and you have done post-graduation maths. So no doubt your maths would be much better than other candidates. ERT ने अप्लाई किया बस Hey? No, sir, I have also applied for TGT. सबके लिए TG. इसमें क्लियर है कितने हैं इसमें? Sir, 140. So first of all, you describe about probability. Sir, probability is we can calculate the estimate of happening a thing. Like we guess different things in real life, but this is more statical. It is not about the imagination. It is based on fact. We guess of happening something on the basis of factual data. Like favorable cases divided by total cases, so that we can get an idea about happening a thing or not happening a thing. Okay. Good. And what are permutations and combinations? Sir, permutation and combination is basically the number of combinations we can made from a situation. Like I have 3 shirts and I have to choose a combination, and like I have 3 shirts and 4 pants, and one day I have to get ready, then I can choose only 1 shirt and 1 pant. So how many combination I can decide from these shirts and 4 pants? This is helpful in combination and permutation. Example in notation form. How will you denote that? Sir, combination is notated as NCR, which is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial, and permutation is denoted by P, and its formula is NPR equal to n factorial divided by n minus r Very factorial. good. Good. And now tell me what are monotonicity. Do you know monotonicity? Sir, monotonicity is like I continue a thing in the same way regularly. Like I learn mathematics, like I learn probability in a way, and I never updated myself. I
keep continue teaching it for 10 years, 12 years without changing any, not changing my gesture, not changing my knowledge, not changing even my examples. I will continue in the same way or doing this in any field. This is called monotonicity. In functional form, how will you define it? Sir, in function, monotonicity refers to, Is it increasing or decreasing function? sir, it can be both. Like it is increasing on all the interval or it is decreasing on all the intervals. Like it is not changing in between the intervals. So That that it is called monotonicity. x1 is less than x2, then function, it's if it is increasing, then what is function? Then fx1 is also less than fx2. And decreasing? Fx1 is greater than fx2. Okay, good. What is a matrix? Sir, matrix is like arrangement or arrangement of the data. We can use in different life also, like an arrangement of or array of things in row and column. Can you define a circle? The Yes, definition? circle is called a circle is which is equidistance, locus of points which are equidistance from the center, From which center, has from a fixed point. from a fixed point, that is called center. Very good. You are very good at mathematics, no doubt. And yes, I will ask some questions in English also. What is active and passive voice? Sir, basically both the statements are same, only the structure of the sentence change. If I say my line in the active voice, that means I am defining my words in the continuous tense. Also, if someone wants to change my statement, not the meaning of the statement, only the structure of the sentence, and make the object to the subject and subject to the object. Like I become the passive and the object become the main part, subject. That is difference between active voice and passive If voice. I ask some typical sentences, change of the voice, it is time to go to where? It Sir, is time to go walk. Sir, this sentence has no object, so we cannot make passive voice. This is typical sentence. Let us go to the fair. Honey tastes sweet. This is also a non-object These are sentence. We cannot some make. typical sentences. If I say, if I go to school, Sir, this is also don't have an object, so I don't think it will go in passive voice. if any sentence has no object, then can't we make voices? Sir, I haven't done masters in English, so I thought they don't teach me up Okay. to that level. Okay. I'm sorry, sir. I have no idea. Thank you, sir. MHRD का But नाम बदल your गया maths is very good. Okay, thank you. I am. Yes, sir. MHRD का नाम बदल गया है जी सर, अभी उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम पे चेंज कर दिया गया। अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जी सर। शिक्षा मंत्रालय जी सर। उसका सीटेट नहीं किया आपने सर किया है सर। फिर इसमें नहीं होता है सर, I don't think there was a column. That's why I didn't mention it. अदर Other में, ये okay. I am जरूरी sorry, sir. I will fill it again. Sir, actually my HTET, READ, UPTET, also the UTET and HTET all are हाँ clear. हाँ गुड 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 हमें क्या इतना होना चाहिए कब किया है Sir, CTET last year, That's not right. HTET this year, and UTET the 2021. अच्छा KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन कब बना स्थापना कब हुई इसकी Sir, it was situated in 1960. I was reading it about इसको दुरुस्त it करो इसको। yesterday. केंद्रीय विद्यालय कितने हैं भारत में I have no idea about it. दूसरे देशों में कितने देशों में हैं? विदेशों में Sir, I think Bhutan में भी है और sir, I was reading about it, but I don't know why I skip it. I will KVS update my के विषय में knowledge about अपडेट it. करो इसकी Okay, sir. कितने जोन हैं कितने स्कूल हैं कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं इसमें Okay, sir. I will update हाँ, myself. कितने स्टूडेंट हैं स्टूडेंट कितने हैं केंद्रीय विद्यालय में लगभग I don't have any idea. 14.5 लाख के करीब
तो इसको थोड़ा सा Okay, sir. I will update in the इसको next अपडेट करके जाना है आपको, ठीक है नहीं? जितनी पॉलिसीज हैं उसके विषय में तो आपको जानकारी होगी। Yes, sir. I हाँ, have a little bit. जो भी चल रही Yes, है, CCE क्या है, Yes, sir. Continuous comprehension evaluation. इवैल्यूएशन, कि हम बच्चे का सिर्फ एक लास्ट में एग्जाम लेके इवैल्यूएशन करने के बजाय पूरा साल उसको असेस करें और उसका कॉन्टिन्यूसली एकेडमिक और नॉन एकेडमिक करिकुलर और नॉन करिकुलर दोनों एक्टिविटीज में उसका ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस होता रहे थ्रू आउट द ईयर, लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सम अदर ऑब्जर्वेशन। फॉर्मेटिव में क्या क्या आता है? सर फॉर्मेटिव में हमें गलती करने का स्कोप होता है, वी कैन मैनेज आर मिस्टेक्स अगेन। फॉर्मेटिव इज नॉट लाइक द वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास। फॉर्मेटिव में हमें फीडबैक मिलता है टीचर की तरफ से कि आपकी ये गलतियां हैं एंड वी कैन रिफॉर्म दैम अप टू द समेटिव। समेटिव में हमें गलती करने का चांस नहीं मिलता है, वी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्लास, इट इज ओनली अबाउट द मेजरमेंट। उसमें फॉर्मेटिव में, समेटिव में सर, फॉर्मेटिव में हमें मौका मिलता है गलती सुधारने का, हम दोबारा रिफॉर्म करके। समेटिव इज फॉर द नेक्स्ट क्लास। NEP के बारे में जानकारी है? Yes, sir. National Education Policy 2022 that has recently come. That changed HMRD Ministry to the Education Ministry. क्या अंतर आया है? सर एक तो बेसिकली जो सबसे मेन अंतर आया है वो इन्होंने जो 5+3+3+4 वाला फॉर्मूला दिया है। दूसरा इन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का उससे क्या लाभ होने वाला है? क्यों आया है? सर, वो 10+2 था पहले, बढ़िया था, लेकिन सर उसमें बेसिक एजुकेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था जिसमें जितना इन्होंने इसमें जो स्टार्टिंग के 5 ईयर में 3 ईयर को अलग प्रिपरेटरी मॉड्यूल के नाम से जो इन्होंने 3 मंथ कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है। और आंगनवाड़ी पहला कौन सा है? पहली स्टेज कौन सी है? सर पहली स्टेज प्री प्राइमरी फाउंडेशन कैसे? सॉरी सर, फाउंडेशनल स्टेज। यस हाँ, तो उसमें कौन से कहाँ तक आएगी क्लासेस? सर फाउंडेशनल स्टेज में बिफोर फर्स्ट क्लास, देन वो प्रिपरेटरी मॉड्यूल में हम फर्स्ट टू सेकंड जाते हैं तो बिफोर थर्ड क्लास, बिफोर थर्ड क्लास, नॉट बिफोर फर्स्ट क्लास। सर वो एक्चुअली 3+2 में डिवाइडेड है फाउंडेशनल स्टेज भी, तो बिफोर फर्स्ट एंड देन फर्स्ट एंड सेकंड, बिफोर थर्ड क्लास भी इंक्लूड इन द फाउंडेशनल स्टेज। ये फाउंडेशनल स्टेज आ जाती है। सेकेंडरी स्टेज में क्या अंतर है? सर मिडिल स्टेज है जिसे हम बोलते हैं। उससे पढ़ने वाले बच्चे को क्या लाभ होने वाला, क्या लार्ज आया अंतर? बहुत बड़ा। सर द मेन डिफरेंस इज दैट कि उन्होंने कहा है कि जो बेसिक एजुकेशन है एटलीस्ट जब बच्चा थर्ड क्लास में जाएगा उससे पहले उसे FLN की नॉलेज जो है वो एकदम कंपलसरी हो जाएगी। हर बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, रीडिंग के साथ न्यूमरेसी का नॉलेज होना चाहिए और एक बेसिक रीडिंग उसको जरूर आनी चाहिए। वी सी दैट mostly students are in class 8th and 9th and they don't even read the English books or Hindi books. So this is the major difference. They said that every kind of child, every stage, child of every stage, every local area, they should get at least FLN knowledge before third class, and then if they go in the next class, they will have basic education and that will help in their higher education. Also there is a very good point. They said 10 days non-bag education in which they will give डेली लाइफ स्किल्स। और सेकेंडरी स्टेज कौन सी है? सर मिडिल एज, मिडिल स्टेज अलग है, सेकेंडरी अलग है, प्रिपरेशन अलग है, फाउंडेशन अलग है। 5+3+3+4 मैं सेकेंडरी स्टेज की बात कर रहा हूँ। जब बच्चा 8वीं पास करके यानी मिडिल पास करके 9th में आता है, सेकेंडरी स्टेज में आता है, 9, 10, 11, 12, ये 4 ईयर कोर्स है। उसमें क्या भारी अंतर आ गया है जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है? उसमें क्या लाभ होने वाला है बच्चों को? सर उसमें वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की गई है कि आप वोकेशन तो पहले भी कहते थे, वो वोकेशन तो बात पहले भी कही गई। पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज को ही रिफॉर्म करके उन्हीं में कुछ कोई स्ट्रीम पर अंतर आया है, सब्जेक्ट लेने पर अंतर आया है कुछ? हाँ, इसको ये जानकारी बहुत जरूरी है। उसमें अब बच्चा आर्ट्स में जाएगा तो आर्ट्स सब्जेक्ट लेगा, कॉमर्स में जाएगा कॉमर्स के लेगा, वो सब खत्म हो चुका है। 9th क्लास में बच्चा मैथ भी ले सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, फिजिक्स भी ले सकता है। अब उसकी कोई स्ट्रीम नहीं रही उस सब्जेक्ट को लेकर के। और दूसरी बात, दूसरा क्या अंतर आया है? एग्जाम 2 बार होगा, जो पहले मार्च एक साल में 1 बार होता था। यस सर। तो बच्चा एंड में जाकर तैयारी करता जनवरी से, अब वो पूरे साल पढ़ेगा। 2 बार एग्जाम होगा, कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। ये सेकेंडरी स्टेज की बात है। 2 क्लास तक, दूसरी क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होगा,
तीसरी चौथी पांचवी क्लास में एग्जाम होगा, उसमें क्रिएटिविटी होगी, उसके अंदर कोई स्ट्रीम नहीं होगी। ये चारों स्टेज आप इसको पढ़ करके जा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इससे क्या है। और उसमें फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या है पता है कुछ? हाँ, उसको भी देख लेना। अब पहले यदि बीच में गैप हो गया, बच्चा 1 साल पढ़ा और छोड़ करके किसी जॉब में चला गया, बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, 1 साल पढ़ा छोड़ करके चला गया, साल खत्म, उसे दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब कहीं भी 1 साल पढ़ लिए नौकरी करने, तो पहला उसे सर्टिफिकेट मिलेगा कि सब कितने पढ़े होगा, सर्टिफिकेट है नहीं, पहले पर, और दूसरे पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तीसरे साल में करेगा तो डिग्री। कोई साल अब बेकार नहीं जाएगी। और चौथा साल करता है तो रिसर्च, और एमए करेगा तो यदि वो 30 साल के बाद करता है तो 2। ये एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ केंद्रीय विद्यालय में लागू कर रही है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब वो हमें पता होगा तो हम स्टेज में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आरटीई क्या है सर? राइट टू एजुकेशन एक्ट फॉर दोज चिल्ड्रन। 86 से जो अमेंडमेंट हुआ संविधान में, वो क्या कहता है सर? वो बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में ही बात करता है कि जो 6 to 14 एज 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनके लिए 6 to 18 एज तक उनको जो फ्री एजुकेशन दी जाएगी। नो एंट्रेंस टेस्ट, नो फीस टेकन एंड नो रिटेंशन पॉलिसीज। जो उससे बाहर है बच्चे, वो ऐसे उसी के वास्ते हुआ 2001 में, 1-2 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा वो शुरू किया गया। चलो सर, मोनिका जी, आपने अपना बायोडाटा फिल किया है, इसमें ये HCEM क्या है? हरियाणा बोर्ड होगा, हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एक बार ध्यान से देखना जरा। सर एक्चुअली दिस इज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। मतलब अपने आप ही मान लिया। सर वो इतना छोटा था ना इसमें, तो फिर आपने कहा था कि वो क्लियर दिखना भी चाहिए, दैट्स व्हाई। आई एम सॉरी सर। नहीं कोई नहीं। एक लेटर और जोड़ यहाँ देते शायद जगह पूरी हैं। एक लेटर और जोड़ देते प्लेस एंड दिल्ली। सर न्यू दिल्ली। हैं। ठीक है। ओके सर, आई विल। आपने भीमराव अम्बेडकर जी को अपना आइडल माना है, यस क्यों? सर वो जो जिस तरह से वो समाज से वंचित थे और उन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया, उन्होंने एजुकेशन को अपना मेन रास्ता बनाया अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। वो चीज़ मुझे उनकी सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। उस टाइम में भी वो 2 PhD स्कॉलर थे, फर्स्ट पर्सन हु गॉट द PhD डिग्री आउटसाइड द इंडिया। ऑल्सो ही डोंट लाइक एज ए रिबिलियन, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे अगर मैं पिछड़ा हुआ हूँ तो एक्सक्यूज दे के वो लाइफ में नीचे नहीं रहे। उन्होंने एजुकेशन के थ्रू अपने आप को इतना ऊपर उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशन तक अपने आप को लेके गए। एंड ऑल्सो हिज रिसर्च। ये बता रहे हो आप उनके काम, आपने क्या सीखा, क्या जाना जो यही मिला सर है? कि एजुकेशन आपको कहीं से भी चेंज करके कहीं भी ले जा सकती है। आप एजुकेशन के थ्रू अपने आप को कितना भी सम्मान दिलवा सकते हैं, प्रतिष्ठा दिलवा सकते हैं। You don't need to be a rebellion or without losing or being a rigid person. You Good. can use education to change your status. ठीक। आप मूवी देखते हैं, Yes sir. अच्छा लगता है देखना? Yes sir. Because movie cinema कौन सी मूवी आपको लगती है कि सर ये मूवी कौन सी देखी आजकल में? सर जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मूवी जो मुझे लगती है आर्टिकल 15, एक मूवी आई थी थोड़े दिन पहले सर, थप्पड़, और एक छपाक आई थी। आई लाइक दिस काइंड ऑफ मूवीज विच रेज द सोशल इश्यूज। छपाक मूवी से आपने क्या शिक्षा ली? सर छपाक मूवी में ये दिखाया गया है कि पहले जब कोई एसिड विक्टिम होता था तो उस पे भी मान लो कि जैसे उसको भी सजा तो मिलती थी लेकिन उतनी नहीं मिलती थी। लाइक इफ समवन थ्रो द एसिड ऑन माय फेस एंड इट हर्ट्स अ लिटिल बिट, तो उसको सजा भी कम मिलेगी। लेकिन मेरे लिए वो कितना इफेक्ट कर रहा है वो तो सिर्फ मुझे ही पता है, मेरी लाइफ कितनी इफेक्ट हुई है। उसके बाद कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलता था, और उससे पहले आई थिंक एसिड लाइक बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था। उसके बाद कुछ लॉज चेंज हुए थे कि अगर कोई एसिड विक्टिम है तो एटलीस्ट उसको इतनी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, और एसिड आप विदाउट परमिशन कंपनीज को नहीं देंगे, और इस टाइप के कई लॉज में चेंज आया था।
रीडिंग बुक्स आपकी हॉबी है, यस किस प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं आप? सर, बुक्स तो एक्चुअली मैं किसी भी टाइप की पढ़ लेती हूँ, वो कुछ विच आर जल्दी पढ़िए, अवेलेबल टू कोई मी। जल्दी में पढ़िए कोई। सर, रिसेंटली आई रीड अ नोवेल, अ नाइट मैनेजर एट ए नाइट कॉल। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? जब से केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से थोड़ा कम हो गया है, अदरवाइज आई पढ़ते रीड थे? यस कौन सा? सर, द हिंदू। टाइम। I only read the editorial portion because it reflects our Good, social good, issues good, and that also. अभी आप दिल्ली में हैं, Yes. वो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सर, धर्मेंद्र प्रहलाद। और हमारे केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री वो कौन है? सर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रहलाद हैं। दिल्ली के मुझे प्रहलाद नहीं पता। कहाँ है? प्रधान। प्रहलाद नहीं वो। प्रधान, हाँ सर, प्रधान। अब आप बताएं, जो मातृभाषा है, यस मातृभाषा से क्या समझते हैं आप? सर, मातृभाषा इज आवर मदर टंग विच वी स्टार्ट लर्निंग, दैट इज विच आर मदर टंग मीन्स जो हमें पैदा होते ही हमारे घर के एनवायरनमेंट में मिलती है, वो हमारी मातृभाषा होती है। लाइक फॉर मी मदर टंग इज हिंदी, फॉर अ ब्रिटिशर मदर आप टंग तो कैन बी इंग्लिश। हरियाणा से हैं? यस सर। हिंदी कैसे हो गया? सर, हरियाणवी इज माई मदर टंग। हाँ, If I specifically said that I am in North India, then my mother tongue will be Hindi. But specifically, my mother tongue is Haryanvi. ओके ओके। व्याकरण क्या है? सर, व्याकरण एक स्क्रिप्ट होती है। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो कुछ हम रूल्स और कुछ सेट ऑफ रूल्स और कुछ नियम बनाते हैं, उन्हीं को हम व्याकरण बोलते हैं। लेखन कौशल में संतुलन होता है किन्हीं दो के बीच, किन किन के बीच होता है? सर, आई थिंक रीडिंग एंड राइटिंग के बीच, लिसनिंग और स्पीकिंग के बीच में। लेखन कौशल में संतुलन होता, बैलेंस होता है किन्हीं दो के बीच, जो Sir, आपकी बॉडी के पार्ट हैं। What we think and our hand, mind and hand. ओके। बहुभाषी कक्षा से आप क्या समझते हैं? सर, एक ऐसा क्लासरूम जिसमें अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे आते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के हो गए, ईस्ट इंडिया के हो गए, साउथ इंडिया के हो गए। तो हो सकता है किसी की मदर टंग इंग्लिश रही हो, किसी की मदर टंग मलयालम रही हो। ऐसे एक क्लासरूम में जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट एक कॉमन लैंग्वेज तो ऐसी जरूर होगी जो बच्चों को समझ आती होगी। तो उस क्लासरूम को हम मल्टीलिंग्विज्म क्लासरूम बोलते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है? सर, 3 भाषा सूत्र ये कहता है कि आप एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस तो अपने स्कूल में पढ़ाइए। पहली जो बच्चे की मदर टंग है वो पढ़ाइए। दूसरी आप इंग्लिश या जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे संविधान में मेंशन है, उनमें से कोई एक पढ़ाइए। और तीसरी आपके चॉइस पे है, आप कोई भी ले सकते हैं। मे बी दैट इज कंसिडर्ड एज इंग्लिश फॉर द नॉर्थ एंड हिंदी एज द साउथ। जो महाराष्ट्र है उसमें दूसरी भाषा कौन सी है? सर, इट मे बी इंग्लिश और इट मे बी मराठी। मराठी। यस जी। त्रिभाषा सूत्र किसकी देन है? सर, कोठारी कमीशन की देन है। और यशपाल कमेटी जो आई थी, उन्होंने भी इसको आगे रेफर किया था, बट आई थिंक इट वाज रिकमेंडेड इन 1986 एनईपी और आल्सो बाय द कोठारी कमीशन। 2 शब्द है, एक तो निज है, एक स्वयं है। व्याकरण में सुनने को मिलते हैं हमें, तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सर, ये निपात बोले जाते हैं, ये चेंज नहीं होते लिंग वचन और इनके अकॉर्डिंग। इन्हें हम निपात या अवयव शब्द बोलते हैं। निज और स्वयं को। यस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं? सर, संज्ञा किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी पर्सन, प्लेस, हमारी फीलिंग्स और इनविजिबल थिंग्स का भी। एनीथिंग नेमिंग वर्ड इज संज्ञा। महेंद्रगढ़ सुना है आपने? जी सर, आई बिलोंग टू महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगढ़ स्थानवाचक संज्ञा है? नो सर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक पर्सनल मतलब प्रॉपर जगह का नाम है। ऐसी बहुत सारी जगह नहीं है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वेल डन। अच्छा, आप कोई एक कविता पढ़ा के हमें सुनाएं। एक कोई तैयार करके जाए लेसन। यस सर, आई हैव रिसाइटल पोएम। कौन सा? हिंदी में ऊट चला पोएम है, वो मुझे याद है सर। ओके। आई हैव टू कंसीडर यू। Yes, sir. ओके। सर, इसको पहले रब कर लीजिए। पहले वो इस तरह की बात है ना, ये सिविल सर्विस का
तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दे। हैं? वो डॉक्टर के बाद जवाब दे दिया। What do you आपने तो बहुत चीज चाहिए थे। तो सर मुझे आपको एज ए टीचर पढ़ाना है या मुझे आपको एज ए स्टूडेंट? As a teacher. एज ए स्टूडेंट है As a student. हम स्टूडेंट आप टीचर हैं। यू आर टीचर। तो बच्चों आज हम कविता पढ़ेंगे जो हमारे, आप अपनी बुक्स खोल लीजिए। आपने अपने आसपास कभी ऊंट देखा है? तो आपको पता है ऊंट कितना ऊंचा होता है? तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, हमारी पोएम उसी चीज के बारे में है। तो हम अपनी बुक्स में देखो फर्स्ट लाइन है, ऊंट चला भाई ऊंट चला, देखो हिलता डुलता ऊंट चला। क्या है? प्लीज रिपीट विद मी। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। वेरी गुड बच्चों। I'm sorry sir, I have to teach you like this first time. Don't laugh. कोई बात नहीं, आप चाहे कुछ भी कहें। ओके बच्चों, we will start it again. ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। कितना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। हमें पता है ऊंट कितना ऊंचा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पोएम में बोला गया है कि देखो कितना ऊंचा ऊंट है वो चल रहा है। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में गिवन है कि ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। कि जो ऊंट है उसकी गर्दन भी ऊंची होती है और उसकी पीठ भी ऊंची होती है, तो वो अपनी ऊंची पीठ को लेकर चल रहा है। रेत बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। कि जो हमारा ऊंट है वो बालू में भी चल सकता है। जो हमारा ऊंट है उसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं, उसके जो नीचे तलवे होते हैं वो बहुत ही मखमली होते हैं, वो बालू में धंसते नहीं है, तो वो बालू के ऊपर भी चल सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों अपने गांव में जब जाते हैं तो राजस्थान और हरियाणा की साइड हमें ऊंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऑल्सो जो ऊंट का साइज है वो बहुत बड़ा होता है, तो वो अपने साथ बहुत सारा बोझा लेकर चल सकता है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू से में भी नहीं रुकेगा, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो इसमें टीचिंग एड का प्रयोग कर सकते हैं आप। क्या सर? कोई teaching aid? टीचिंग एड होती है। Yes sir, I can use the diagram of the ऊंट also. अगर ICT या तो आप ऊंट का कोई वो ले जाए जो कुछ लड़का डायग्राम बना के ले जाए, या इस पर आप बना दें, जी सर। है नहीं, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बच्चा जो है उस ऊंट के को देख करके, जैसे आपने गर्दन बताई, जो आपको शब्दों में बताना पड़ रहा है, यदि उसकी आकृति आप थोड़ी सी उल्टी सीधी भी बना देते, आप बना तो कुछ थोड़ा सा बनाते, तो ये बच्चों को मतलब ज़्यादा वो लगता, जिस तरह से ऊंट का ये गर्दन या जो भी है नहीं। नहीं, मेरा मतलब कहने का सुनो, आपको टीचिंग एड की बात आती तो आप इस कविता के लिए उपलब्ध करा सकती है, और वो अपना उसकी प्रैक्टिस करके जाए बना करके, है नहीं। चाहे वो अलग से सामग्री चार्ट में ले जा सकते हैं, और नहीं तो वहाँ पर आप बना सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी निशान ऐसे बना दें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग बन जाएगी आपकी। क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं केवल बोर्ड चौक से काम नहीं चलेगा। बड़ी क्लास के बच्चे नहीं हैं, छोटी क्लास की कविता को पढ़ा रहे हो, और ये जो एक तो बोर्ड की एंट्री आपने कंप्लीट नहीं की, ये बिल्कुल डेट वगैरह जो भी डालना चाहिए था वो नहीं है। ये प्रॉपर आपने एज ए टीचर बोर्ड को एंट्री पूरी नहीं की, नंबर 1 गलती। नंबर 2, ऊंट पर मात्रा कहाँ चढ़ा दी है, तो ये आपने ऊंट तो चढ़ाया, मात्रा इतनी गलत चढ़ा दी कि वो सब मामला गड़बड़ कर दिया मतलब। क्योंकि टीचर बच्चा जो है उसे देखता नहीं है, बच्चा उस मात्रा को देखता है, उसी तरह से वो उसको करता है। तो स्पेलिंग आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। टीचिंग एड का प्रयोग करें, बोर्ड के एंट्री कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जो ऊंट निकलवाया था, शुरुआत कैसे की थी उन्होंने, भूल गया। ऊंट चला? नहीं, ऊंट चला, ऊंट को निकलवाया कैसे? हाँ, आपने बच्चे ऊंट को कभी देखा है? हाँ, ऊंट को कभी देखा है,
या 2-4 के नाम पूछ ले। हाँ, जैसे भी एक है, अच्छा है। इसके बजाय अगर आप कहते कि राजस्थान का जो पॉपुलर एनिमल है वो हाँ, कौन सा है? रेत या एक मैंने का जहाज। हाँ, राजस्थान का जहाज कहते हैं। वैसे किस, यदि ऊंट बच्चों की तरफ से निकल कर के आता शब्द, हाँ। कोई स्किल ऐसी आप देखें जिससे वो निकल करके आए। कविता पढ़ाने में यहाँ पर अर्थ, मुहावरा, समास, संधि नहीं देख रहे हैं कि बच्चों को उसके साथ जोड़ना और उनमें रुचि पैदा करना। तो बच्चे ऊंट को निकालें, उसकी आकृति सामने हो और कविता का नाम लिखें और उस ऊंट की विशेषताएं बताएं। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, जो भी है नहीं, और रेत पर चलता, बालू पर चपते, उसकी विशेषता भी आएंगी। रेगिस्तानी जहाज भी हो जाएगा और एक कविता भी हो जाएगी, बच्चों में रुचि पैदा हो जाएगी और सामग्री का प्रयोग हो जाएगा। एंट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब तो डैम हो जाएगा ना। 30 नंबर का पार्ट है। इस कुर्सी पर बैठे थे 30 नंबर और खड़े हो गए तो 30 नंबर, 60 नंबर का एंट्री हुए बेटा, ठीक है नहीं? हाँ, मैथ का एक टॉपिक और पढ़ाओ। मैथ से है आप डेफिनेट जोड़ना घटाना पूछ लो। आप बताओ क्या जी? मैथ का कोई टॉपिक जोड़ना घटाना पूछ। मैं इसके तो बहुत क्वेश्चन पूछे मैंने जी। नहीं, टॉपिक पढ़वाओ। कोई टॉपिक पढ़ो। टॉपिक, हाँ, मैथ्स में आप छोटे बच्चों को, हाँ, छोटा। हाँ, आप उनको डिवीजन कैसे सिखाएंगे? डिवीजन सर सबसे पहले तो मैं वही चलो आप पढ़ाओ। आप पढ़ाओ, हमें कुछ मत बताओ। सर को मत बताओ, ओके सर। बच्चे बैठे डायरेक्ट और अपना टॉपिक अब तुम्हारे पास है और हमें तो आपको पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक पता चल जाए, ये बात होनी चाहिए। एक आपकी जो राइटिंग है ना, ये ऐसे जा रही है। ऐसे जी नहीं सर, ये नहीं जा रहे एक्चुअली मैंने वो पे क्लास बोर्ड लगा हाँ, दिया है, हाँ। मैं प्रैक्टिस कर हाँ, प्रैक्टिस इसमें पहले लाइनें डालो आप, जी सर। लाइनें डाल के फिर प्रैक्टिस करो। जो भी है। नेक्स्ट टाइम हाँ, चलो हाँ, बताइए। सर फर्स्ट आई विल चेक योर प्रीवियस नॉलेज। आप सबको बच्चों, आप सबको नंबर्स पता है, काउंटिंग 1 2 3 4 5। भी आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन की नॉलेज है, आपको पता है हम 2 + 2 कैसे करते हैं। देन सब्सट्रैक्शन कि हमें किसी चीज में कुछ घटाना होता है तो कैसे करते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन की नॉलेज पे फिर जाने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको टेबल्स आनी चाहिए। टेबल के बिना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा सीखना, तो मैं पहले बच्चों को टेबल सिखाऊंगी एंड आफ्टर दैट आई विल इंट्रोड्यूस डिवीजन फ्रॉम द फ्रैक्शन। कि हम जैसे मान लो ये कोई हमारे पास कोई गोला है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो ये हमारा हाफ पोर्शन हो जाता है, ये हमारा हाफ हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन। हमने एक चीज को 2 भाग में बांट दिया, इसको हम बोलते हैं भाग। ऐसे ही हम बड़े नंबर्स का भी भाग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 7 को 2 से डिवाइड करना है तो हम आपको सबसे पहले 7 2 की टेबल इसके साइड में लिखनी पड़ेगी। हम टेबल से स्टार्ट करेंगे 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और ऐसे करके जहां तक हमारा नंबर है हम वहां तक अपनी टेबल लिखेंगे, या फिर आप चाहें तो पूरी टेबल लिख सकते हैं। डिवीजन के साइड में पहले टेबल लिखवा के फिर ही उनको डिवीजन इंट्रोड्यूस करवाना, तो वो इजी रहेगा। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि 7, तो 7 से छोटा हमें देखना है बच्चों। 7 से छोटा हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो या तो हमें इसमें 7 ढूंढना है या 7 से छोटा ढूंढना है। तो जब हम 7 से छोटा देखेंगे तो हमें पता चला कि यहाँ पे 6 आ रहा है और ये कौन से काउंटिंग पे आ रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर हम इस नंबर में से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें सब्सट्रैक्शन आता है 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। और एक्चुअली सर मैं प्रेफर करूंगी कि यहाँ पे पहला डिवीजन होल कंप्लीट हो, क्योंकि डेसिमल बाद में इंट्रोड्यूस होगा। तो वी विल गो टू द 8। तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे और 8 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जब ये डिवीजन आ जाएंगे तो फिर मैं जो यहाँ पे बच जाता है लास्ट में डेसिमल वाले डिवाइड पे लेके जाऊंगी। हाँ, देखिए, चलो आ जाओ हम बताएंगे। जैसे डिवीजन जैसे आप बता रहे थे ना, तो डिवीजन से पहले कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, टेबल जान गए होंगे, प्लस माइनस सीख लिया होगा, वो तो उनका प्रीवियस नॉलेज है, उनके पास पहला पूर्व ज्ञान उनका है। अब जैसे आपने पहाड़ यहाँ किया ना, इतने बटा इतने, तो उन बच्चों को लेकर के एक वो खींच करके आप आयत सार उसके 7 डिवीजन बना देते हैं, 7 भाग कर देते। 7 बटा कितना था वो? 7/2 या 7/2 था, है नहीं? अब 7 हमने बना दिए, कॉलम बना के और उसमें से हाँ सर, उसके 2 ले लो,
है नहीं? तो मतलब कहने का एक आपका Okay, sir. क्रिएट उसमें होना चाहिए। Okay, sir. मैं बार बार कह रहा हूं कि मुंह से जितना हम समझाते हैं उससे वो ज्यादा- बच्चे को आप ऊंट मैंने बनवाया उसी तरह से उनका डिवीजन करने के लिए एक रेखा वो बना देते हैं, उसके 7 भाग करते 2 ले लेते, 8 करते 3 लेते, तो बच्चों से फिर 3 पूछो, किसी व्रत में से लो, त्रिभुज में से लो, आयत में से लो, किसी में से। इसके इतने एक रोटी बनाई, रोटी के हिस्से 3 बच्चे, 3 मिल गए, 1 टुकड़ा रह गया, जो भी है। डिवीजन को पूछने के लिए ये था, टेबल से तो कर ही रहे हैं Yes, sir. लेकिन यदि उसकी आकृति बना करके उसको एक और रुचिकर बनाए, Yes, sir. टीचिंग को कैसे सहज और रुचिकर बना सकते हैं जिससे कि वो पाठ बोधगम्य हो जाए, बच्चों को सहज समझ में आ जाए, यही है टीचिंग का मतलब। हाँ, 2 का पहाड़ा सीख लिया कर लिया वो सब नहीं चलेगा, इसको जोड़ना। मतलब कभी भी काम हो गया उस चीज को बताने के लिए आप उसके लिए चित्र बना दो, तो हम यहाँ बना देंगे, फूल बना दो, बगीचा बना दो, कुछ घर बना दो, जैसे भी समझाना, जो टॉपिक है उसका कुछ बनाओ और उसको फिर डिलीवर करो, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मोनिका, Yes. एक तो पॉइंट मैंने ये कहना टीचिंग में कि आपकी जो लैंग्वेज अब तेज है, छोटे बच्चों में थोड़ा स्पीड है, Okay, sir. आवाज़ की ऊंचाई नहीं करा, Sir, स्पीड speed आपकी को मुझे थोड़ा स्लो करना है। स्लो करना, मतलब ऐसा हो कि मुझे Okay. थोड़ा सा स्लो बोलना है। Okay, sir. नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो आपका ठीक था फिर सर के लिए, वहाँ बिल्कुल एकदम जो सर कह रहे हैं। Okay, sir. हाँ, ओके। प्यारे बच्चों, आवाज बदल जानी चाहिए बेटा। मोनिका जैसे कुर्सी पर जो बोल रहे थे और बोर्ड की आवाज में अंतर आ गया, तो समझो कि अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पहले बड़ों को इंटरव्यू दे रहे अब सारी चीजें समझाऊंगा बेटे मैं थोड़ी। ओके, व्हाट इज योर सिस्टर? हैं। आवाज में अंतर आ जाता है तो समझो Sir, वो she डेमो is देना in चाह रहे graduation. हैं। He is doing? Graduation. He is doing younger to you? Yes, sir. Okay. Now recently election held in 3 states. Name those states. I don't. 3 जगह पर इलेक्शन हुआ भारत में। I have no idea, sir. जब से KVS एग्जाम Okay. KVS नीचे पढ़ने CJI क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर I knew it, sir. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण. Okay. अभी रिसेंटली चाइना में तीसरी बार प्रेसिडेंट मनोनीत हुआ है, उनका क्या नाम है? मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में 2 प्रोमिन वो है मेथड्स, वो व्हाट आर देयर? सर इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड. हाँ, इंडक्टिव मेथड में हम पहले एग्जाम्पल समझाते हैं. जैसे मैंने कहा कि संज्ञा क्या है, तो मैं संज्ञा डिफाइन करने से पहले कुछ एग्जाम्पल दूँ कि ये जो ग्लास है, ये ग्लास भी एक संज्ञा है, ये पेन है, ये भी एक संज्ञा है. डिडक्टिव मेथड में हम उल्टा करते हैं. पहले हम रूल बताते हैं. जैसे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना है तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का और फिर उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस दिए. तो डिडक्टिव में हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल आते हैं. एक अच्छे स्कूल की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सर, कवरिंग ऑल आस्पेक्ट। ओके सर, सबसे क्वालिटी तो सबसे अच्छी क्वालिटी यही होनी चाहिए कि बच्चों को डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. वहाँ पे एजुकेशन के मतलब एकेडमिक एस्पेक्ट के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज भी इक्वल पोर्शन में होनी चाहिए. असेसमेंट जो है वो समेटिव होने के बजाय फॉर्मेटिव समेटिव और जो CCE बेस्ड असेसमेंट है वो होना चाहिए. और सर लाइक प्रोग्राम्स जो हमारे सांस्कृतिक और मोरल वैल्यूज हैं ये सब भी उसमें इंक्लूड हों. ये जो आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की, उसमें आप क्या जज करते हैं बच्चे का? सर फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो ओवरऑल जजमेंट ही होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज का भी जजमेंट होता है. और जो हम टेस्ट लेते हैं उसमें टेस्ट के बाद में हम उन्हें फीडबैक भी देते हैं, लाइक दीज वर योर मिस्टेक्स एंड दे कैन इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट टाइम. So there is no difference between summative assessment and सर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव. फॉर्मेटिव में हम साल के बीच में जो टेस्ट लेते हैं उसके बाद बच्चा इंप्रूव करके उसी को दोबारा समेटिव असेसमेंट में अपनी गलतियां सुधार सकता है. समेटिव असेसमेंट क्लास एक्सेलरेशन ग्रेड एक्सेलरेशन के लिए होता है. उसके बाद हम 6th पास करके 7th में जाते हैं. तो अगर जो हमारी मिस्टेक 6th क्लास के फाइनल एग्जाम में थी उन्हें हमें सुधारने का स्कोप नहीं होता. वो तो फिर नेक्स्ट ईयर हम चले गए, आइदर वी आर पास और वी आर फेल. We cannot improve our mistakes, but in formative assessment there is a scope for mistake improvement.
आपने एक अभी बताया भीमराव अम्बेडकर, तो डिप्राइव्ड जो चिल्ड्रन होते हैं Yes. उनके लिए क्या क्या करना चाहिए कि वो डिप्राइव्ड ना कहे जाएं और streamline सर, करें? इन माय पर्सनल ओपिनियन ये चीज आई डोंट नो लागू हो सकती है या नहीं. वी शुड रिमूव द सरनेम फ्रॉम द academic certificates. We can only mention the name of every student. We should not also the हमारी गवर्नमेंट जो अलग अलग स्कीम्स लाती है, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स हम देते हैं. हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं. बेसिकली जो हमारा सिनेमा है वो हमारे समाज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो हमें सिनेमा के थ्रू भी इन मुद्दों को उठाना चाहिए. और जो हमारे गली नुक्कड़ में पहले नाटक होते थे जो इन चीज़ों को उभार के लाते थे, जो अनटचेबिलिटी है ये जो ख़त्म हुआ है, और हम लोगों को जब एजुकेट करेंगे, जब हमारी जनरेशन आएगी जिसमें सब एजुकेटेड होंगे, तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी. बाकी गवर्नमेंट लॉ बनाती ही है कि जैसे कोई अनटचेबिलिटी का फॉलो करेगा तो उसे फाइन भी देना पड़ेगा या उसको पनिशमेंट भी हो सकती है. तो बिसाइड द गवर्नमेंट वी शुड आल्सो ट्राई ऑन आवर बिहाफ. See, I am simply asking, some children are deprived children. They don't have anything at their disposal. Maybe of any religion, maybe of any caste. Because there is no caste, no religion in school campus. Yes. School campus, no religion, no caste. Because we call a student by name. Yes. We never say anything about the caste and about the religion. They are deprived. They do not have means, economic means to go to the higher basic, go to the higher education. सर, और हमारी गवर्नमेंट जो स्कीम्स देती है, जैसे सबसे पहले बेसिक एजुकेशन को अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास आरटी ही है, वो 12th तक फ्री एजुकेशन देते हैं. उसके बाद अगर वो चाहे तो अपना प्रतिभा दिखा के स्कॉलरशिप मैनेजमेंट करवाती है हमारी गवर्नमेंट. ऑल्सो देयर आर मैनी डिफरेंट कोटा इन विच दे कैन अप्लाई, एंड दैट्स हाउ वी कैन मेक देम Okay. अवेलेबल. Thank you. Wish you good luck. Continue इसमें your बेटा continue बहुत your अच्छा है. effort. बेटा इसमें ना आधा पेज निकालो पहले. आपका भविष्य अच्छा है लिखो पढ़ाई जो में। पहले फिर उसमें और मैं तो आपको कर सजेस्ट लेना। करूँगा अपनी कि आप कमियां नोट करो कि आप सिविल सर्विस के लिए और तैयारी करें। फ्यूचर में ये Sir, सिखाएंगे। actually I thought about it, but due to some family reasons, some कोई conservative नहीं, kind कोई of family, नहीं। I don't have much यही तो time. मैनलीनेस है. Yes. In spite कोई- of all hurdles, if you can एक do तो- the wonders, this is the manliness. फर्स्ट पॉइंट कुर्सी खींचना गलत Yes, था। sir, वो उसमें आवाज आई नहीं थी. खींचना ही नहीं है, ठीक जहाँ रखो. है वही- अगर जगह नहीं है तो Okay, sir. उस केस में, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम ये होना नहीं चाहिए. Okay, और sir. आपसे काफी उम्मीद है हमें, जी ठीक है सर. ना. आगे है आपका स्माइल फेस. बाद में थोड़ा था, सब में तो ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में हो आप. प्लीज थोड़ा सा वो तो कोई नहीं कर लेगी. हर एक चीज नोट की है मैंने आपकी. बोलने का जो फ्लो है थोड़ा सा वो करना पड़ेगा. Okay, sir. नोट करते जाओ. एक तो सबसे जो बुरी आदत दिखाई दी, बाद में थोड़ा आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें तो बहुत गलत है. नहीं आता है तो थोड़ा हर रोकें. एक उससे भी जो बहुत बड़ी कमी है वो नोट कर बेटे, ये तो बिल्कुल दूर करनी. वेट की कमी है. सर प्रश्न पूछ रहे थे, इनका प्रश्न पूछना पूरा नहीं, उससे पहले आप उत्तर देना, ये बहुत बुरी. क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर उसने क्वेश्चन घुमा दिया फिर कहाँ जाओगे. केवीएस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है आपको. जी सर, I will update that. हाँ, टीचिंग डेमो. एनईपी के बारे में भी जो आपकी टीचिंग डेमो थी NEP जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी कमजोर है. है. ठीक है, जिसमें आपने जो कविता पढ़ाने की जो विधि है, गीत एवं नाट्य विधि, कोई प्रयोग नहीं हुआ. बोर्ड की एंट्री 0 थी. ये थोड़ा सा कर ले. लिखाई बहुत गंदी है, इसको सुधरवा दूंगा. मैं कल ही सुधरवा दूंगा, टेंशन मत लो. जी सर. करंट अफेयर बिल्कुल 0. जी सर. व्याकरण क्या है गलत बताया आपने. स्क्रिप्ट बता दूं तो लिपि होती है. हाँ, उसके बाद लिपि है वो गलत बता दिया सब. जो आपकी अच्छी बात जो हमें लगी, नॉलेज ओवरऑल अच्छी है अगर एकेडमिक की बात करें तो. दूसरा Knowledge अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है. आपका लाजवाब है. मैथ्स बहुत अच्छा है. हाँ नहीं, Math गजब. नॉलेज अच्छी सर, एकेडमिक नॉलेज में कोई डाउट नहीं है. एकेडमिक भी अच्छी. जीके करंट अफेयर ये संस्थाओं से इनमें पीजीटी होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों रह गई. हाँ, ऑन करो. पीजीटी नंबर कम रह गए कुछ. Sir, 125.